Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फिट एंड फाइन. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे. वन मोर टाइम वेलकम टू द चैनल ग्लीमिंग ग्रामर. इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम या आप चैनल पर नए हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली. बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें. As the weather is getting cold and we don't want that your preparation gets any type of hindrance, so here today we are offering you a cup of hot beverage. Whatever you like, tea or coffee, you can consider it the same, but don't pause your preparation. So today we are gonna do an amazing, fascinating and I must say a captivating quiz. Yes, और ये क्विज होने वाला है एंटोनियम्स का. आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना बी द मोस्ट फैसिनेटिंग वीडियो, और आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल भी क्विट कर ही नहीं पाएंगे. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप योर टास्क असाइड फॉर सम टाइम. आप जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि इस क्विज में आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं. And in today's video I'm just going to focus on content more and there will be less explanation. Okay, I just want you to do some brainstorming. तो आज की वीडियो में जो explanation part है वो थोड़ा सा कट हो जाएगा, right? And I'll try to put the things in a nutshell. explain भी होगा but थोड़ा कम होगा, right? And let's see how many marks or how many scores will be there in your pocket. So let's start. The journey of 1,000 miles begin with a single step. And you know, you have already started or you have already taken that first step. आप वो अपना first step ले चुके हैं. Okay, second भी ले चुके हैं, I must say, because you have started doing the preparation with Gleaming Grammar, और जहाँ पर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं so that you can accomplish your goal and you know what's your goal to clear this examination. Yes, so you started this journey. Just keep on watching all the videos, right? Don't skip the videos so that your preparation will be not better but the best. So now just fasten your seat belt as the airplane of Antonium quiz is going to take off. अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें and I hope you must be ready for that. Let's get started. So, choose the antonium of the word modern. Now, for every question, you will be given 30 seconds. Alright, I'm setting a timer also, right, to make it more interesting. आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 seconds का टाइम दिया जाएगा, right? I will start the timing only once I will read the question, okay? So, let's start. Choose the antonium of modern. What will be the antonium of modern? Ancient, awake, new or unknown. Your time starts now. And time up. So the antonium of modern will be ancient. Okay, modern is something which is new, updated, and ancient is which is something old. Okay, प्राचीन भी हम इसको कह सकते हैं. Now let's see the question number 2. Choose the antonium of compulsory. Open, required, C option is irrelevant, या D option optional. You have to choose the antonium of compulsory. Your time starts now.
tada, time up. So the correct answer is optional. I hope आपका भी आंसर डी ही आपने चूज किया होगा. ऑप्शनल कंपल्सरी इज समथिंग विच इज मैंडेटरी एंड ऑप्शनल इज समथिंग विच इज सपोज टू बी अ चॉइस. आप कर भी सकते हैं उसको और नहीं भी. ऑल राइट, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सीडेंटल. ए ट्रेजिडी, बी इंटेंशनल, सी इरेगुलर या ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपके समय की समृद्धि यहाँ पर समाप्त होती है. आपके समय की अवधि यहाँ पर समाप्त होती है. बेसिकली एक्सीडेंटल मीन्स समथिंग विच हैपन्स विदाउट एनी प्लानिंग. ऑल राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इंटेंशनल, ऑप्शन नंबर बी. राइट, एक्सीडेंट्स दे आर नॉट प्लान्ड बट समथिंग विच वी आर डूइंग इंटेंशनली. ओके, वी डेफिनेटली डू सम प्लानिंग अबाउट दैट. ओके, सो आई होप यू आर यूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन. ऑल राइट, let's move ahead towards the question number 4. Choose the antonym of yell. Option A shout, option B deep, option C whisper, and option D is kind. And your time starts now. Buzzer has rung. Time up and the question was antonym of yell. आपको find करना था. Right, yell का meaning होता है giving a loud cry, shout. Okay, so shout is here the synonym. Deep, something गहरा. Whisper means talking slowly and kind means दयालु. So yell का जो opposite होगा that will be whisper. Okay, फुसफुसाना. And yell means shouting. Okay, or giving a loud cry. Let's see the question number 5. Choose the antonym of forbid. Option A above, option B is allow, option C forget, and option D says adjust. Your time starts now. समाप्त होता है. So the antonym of forbid is allow. Okay, forbid means मना करना. Okay, like it is somewhere you must have seen the statements written near the gardens that entering inside the park or garden is forbidden. Forbidden means बिल्कुल no है, it's a big no. Okay, and allow means to give permit. Now let's see question number 6. Choose the antonym of indefinite. Option A estimate, option B amount, option C accurate, या option D calculate. Your time starts now. टाइम अप. इनडेफिनेट का ऑपोजिट होगा यहाँ पर एक्यूरेट. ओके, दो इनडेफिनेट में जो रूट वर्ड है दैट इज डेफिनेट, और इसमें इन जो है वो प्रेफिक्स लगाया गया है. प्रेफिक्स सफिक्स आपने पढ़े होंगे. सो यहाँ पे एक अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो वो डेफिनेट है. तो अगर यहाँ पर कहीं डेफिनेट होता तो वो भी इसका एंटोनियम हो जाता, बट डेफिनेट नहीं है. डेफिनेट मीन्स सर्टेन, एक निश्चित मात्रा.
ओके. सो indefinite मीन्स जो कि निश्चित मात्रा नहीं है. सो definite इज निश्चित मात्रा एंड indefinite इज विच इज नॉट सर्टेन. ओके. So here accurate will be the opposite. Indefinite, okay, and accurate will be the opposite. Let's move ahead towards question number 7. Here at your screen, choose the antonym of appear. Option A visible, option B deny, option C notice, या option number D vanish. Your time starts now. Time up. So the antonym of appear is vanish. Appear means all of a sudden सामने आ जाना. Okay. और अगर हम इसमें प्रेफिक्स लगा के भी इसका एक एंटोनियम बनता है डिसअपियर. ओके. और इसका एक एंटोनियम होता है वैनिश, गायब हो जाना. एपियर का अगर एग्जांपल हम ले, सो यू नो आफ्टर लाइक यहाँ पे 30 सेकेंड्स का टाइमर है और एटलीस्ट 10 to 15 seconds आई एम टेकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन. सो यू कैन से दैट आफ्टर 45 seconds अ क्वेश्चन appears, अ न्यू क्वेश्चन appears ऑन माई स्क्रीन. तो क्या होता है, एकदम से आ जाता है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. ऑलराइट, appear. और अगर सडनली इट इज डिसअपियरिंग, अगर गायब हो रहा है तो दैट विल बी वैनिश. ओके. इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं. देयर इज अ डिटर्जेंट ऑल्सो जिसका नाम है वैनिश. ओके. और वैनिश का मतलब होता है वैनिश से दाग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. सो वैनिश इज ऑल्सो गायब हो जाना. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8. चूज द एंटोनियम ऑफ एस्टोनिश्ड. ऑप्शन ए अम्यूज्ड, ऑप्शन बी एंडलेस, ऑप्शन सी रिलैक्स्ड, या ऑप्शन डी शॉक्ड. आपका टाइम शुरू होता है अब. और आपका समय समाप्त होता है. एस्टोनिश्ड मीन्स होता है अमेज्ड, शॉक हो जाना किसी बात से. एस्टोनिश्ड होना, सरप्राइज्ड हो जाना. अम्यूज्ड का मीनिंग होता है हैप्पी. एंडलेस जो खत्म ना हो. शॉक्ड इज अगेन एज आई टोल्ड यू अमेज्ड, एस्टोनिश्ड. एंड रिलैक्स्ड इज द ऑपोजिट ऑफ एस्टोनिश्ड. ओके. अगर आप सरप्राइज नहीं है तो अगर आप सरप्राइज होते हैं, इन केस एस्टोनिश्ड हैं, शॉक्ड हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव सम एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. ऑन द अनदर हैंड जब आप रिलैक्स होते हैं, सो यू आर वेरी कूल, वेरी काम. Let's see the question number 9. Choose the antonym of aware. Aware का antonym क्या होता है? Option A is ignorant, option B is uncertain, option C is doubtless, या option D that is sure. Your time starts now. Time up. So basically here the word is aware. Aware होता है जागरूक रहना. You can say I am aware about my rights. Okay. And the antonym will be ignorant. Okay. Uncertain again, you are not sure. Doubtless, अगर आप doubtless हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, तो यानी कि आप अवेयर हुए ना, तो दिस विल बी समवेयर सिनोनियम. और अगेन अगर आप श्योर हैं तो आपको डाउट कम है, आप अवेयर हैं किसी चीज़ से, ओनली दैन यू विल बी श्योर. तो ये सी एंड ऑप्शन डी दे वर समवेयर सिनोनियम्स. सो एंटोनियम विल बी इग्नोरेंट. आपको कुछ नहीं जानकारी है. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. आई होप आपका क्विज काफ़ी अच्छा जा रहा होगा. इट्स सिंपली माई एक्सपेक्टेशन. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द एंटोनियम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है. ये वर्ड ओके, इसका एंटोनियम और प्लस इसके कुछ सिनोनियम्स तो आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए.
So what will be the antonym of extravagant? Option A poor, option B cheap, option C thrifty, या option D luxury. And your time starts now. Time up. So, the correct answer is option number C, thrifty. Here, extravagant means spendthrift. You know, extravagant is a person who spends a lot of money. Okay, जिसको हम spendthrift भी बोलते हैं. That you know, she is a spendthrift. She is an extravagant. बहुत पैसा खर्चा करती है, right? And करता भी हो सकता है. I'm not being biased here, gender bias. And here, thrifty means you know somebody who is miser. जो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, थ्रिफ्टी है. एंड माइजर और थ्रिफ्टी में बेसिकली डिफरेंस होता है एक माइन्यूट सा, बिकॉज थ्रिफ्टी इज अ पर्सन हु स्पेंड्स कॉशियसली. ऐसा नहीं है कि वो कंजूस होता है, राइट? वो कॉशियसली खर्च करता है. इट मीन्स वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वो तब आप मनी स्पेंड करेगा. ऑन द अनदर हैंड माइजर जो होता है वो खर्च करना ही नहीं चाहता, इवन वेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड. लेकिन अगेन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं. थ्रिफ्टी एंड माइजर, स्क्रूज, ये सब सेम synonym categories में आते हैं. So I have told you 3 synonym here of thrifty, miser and screws, और extravagant का साथ में आप लर्न कर लीजिए spendthrift. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ. Let's move towards question number 11. Here you have to choose the antonym of rarely. Okay, rarely का antonym क्या होगा? Hardly, definitely, frequently या periodically. Okay, so your time starts now. टाइम अप. सो बेसिकली रेयरली का जो एंटोनियम होगा दैट विल बी फ्रिक्वेंटली. ओके, डेफिनेटली आपने ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट कर दिए होंगे. यू माइट बी हैविंग सम डिलेमा बिटवीन सी एंड डी. ओके, तो मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ. रेयरली मतलब वेरी रेयरली, बहुत कभी कभी. फ्रिक्वेंटली मतलब वेरी ऑफन, बार बार कोई चीज़ होती है. और पीरियोडिकली जो है वो भी बार बार होती है. बट पीरियोडिकली और फ्रिक्वेंटली में डिफरेंस ये है बेसिक कि पीरियोडिकली इट हैपन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. ओके, लाइक अगर मैं कहूँ कि like there is any exam which is being conducted after 2 months, so it is a periodical exam. okay, periodically वो हो रहा है, एक certain period के बाद हो रहा है. जबकि frequently मतलब कभी भी हो सकता है, जल्दी जल्दी. okay, like twice a week, thrice a week, right? So that is frequently. So the opposite of rarely means frequently. See the question number 12. You have to choose the antonym of crowded. okay, बहुत अच्छा word है. See the opposite words here which are given in the option. Option A says busy, option B congested, option C is quiet and option D says deserted. ध्यान रखिए आपको एंटोनियम्स चूज करने हैं. स्टार्ट योर टाइमर एज वेल. समय समाप्त होता है. सो क्राउडेड का जो ऑपोजिट होता है दैट इज डेजर्टेड. ओके, डेजर्ट. अब डेजर्ट जो होता है रेगिस्तान, आपने भी देखा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, खाली खाली होता है ना रेगिस्तान, बहुत दूर दूर घर भी होते हैं वहाँ पे. सो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं. डेजर्टेड इज अ प्लेस विच इज नॉट हैव दैट मच पॉपुलेशन. ओके, एंड क्राउडेड मतलब भरा हुआ. ओके, द सिटीज आर क्राउडेड, वेयर एज इफ यू विल सी द डेजर्ट्स दे आर डेजर्टेड. अगेन लेट्स मूव अहेड towards question number 13. लास्ट की जो 3 क्वेश्चन है 13, 14 एंड 15, दे आर अ बिट स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन. ओके, एंड आई पुट दैम इंटेंशनली सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज्ड भी रहे. हियर यू हैव टू चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट. क्या होगा? सेमी ट्रांसपेरेंट,
बी मडी, सी डार्क या ऑप्शन नंबर डी ओपेक? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So transparent is basically, you know, okay, like a window pane जो शीशा होता है, that is transparent because it allows the, you know, light to, you know, go through. light उससे आ जा सकती है. So here the opposite will be opaque. Opaque होता है, you know, कोई भी चीज़. For an example, even if you are using a book, okay, तो book is opaque because book के, you know, light जो है वो go through नहीं हो सकती, आर पार नहीं जा सकती, तो दैट इज ओपेक. एंड यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट ऑपोजिट नहीं होगा. ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट जो है वो, इसका अगर मैं एक वर्ड आपको दूं, सो दैट इज, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आपको पता चल गया होगा, ट्रांसलूसेंट. ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट कैन बी ट्रांसलूसेंट. ओके, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल जिसके आर पार दिखता है, जिसके आर पार हल्का हल्का दिखे, दैट इज ट्रांसलूसेंट. और बिल्कुल भी लाइट गो थ्रू नहीं हो पाती है, यू नो, दैट इज ओपेक. ओपेक. ओके, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. चूज द एंटोनियम ऑफ ऑटोनॉमी. ओके, ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है. ऑप्शन ए से स्लेवरी होगा इसका ऑपोजिट, ऑप्शन बी सबॉर्डिनेशन, ऑप्शन सी डिपेंडेंस या ऑप्शन डी सरेंडर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑल राइट, सो योर टाइम इज अप. सो बेसिकली हेयर ऑटोनॉमी तो माइट भी, अगर आपने ना सुना हो, आपने ऑटोनॉमस वर्ड जरूर सुना होगा. ओके, ऑटोनॉमी जो है वो रूट वर्ड है, उसी से बना है ऑटोनॉमस. ओके, सो जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ओके, दे वर्क बाय देमसेल्व्स, यानी कि वो कोई भी डिसीजन खुद से ले सकती हैं. ऑटोनॉमस, यू नो, बॉडी है, ऑटो कहते हैं ना, दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. सो बेसिकली ऑटोनॉमस खुद ले सकती है, और जो नहीं ले सकती वो क्या होगा? डेफिनेटली डिपेंडेंस. ओके, वो डिपेंड करती है दूसरों पे, राइट? सो दैट विल बी डिपेंडेंस. स्लेवरी तो बिल्कुल नहीं होगा. सबॉर्डिनेशन नो, समथिंग विद सपोर्ट. एंड सरेंडर तो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है. तो ऑटोनॉमी इज बेसिकली, आप इसको ऑटोनॉमस से कोरिलेट कर सकते हैं, दैट यू नो his school or his, you know, organization, his company is an autonomous body. एंड द ऑपोजिट विल बी डिपेंडेंस, जिसको डिसीजन लेने में कोई भी, यू नो, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए डेफिनेटली किसी की परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज नोन एज डिपेंडेंस. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15. चूज द एंटोनियम ऑफ पेट्रीफाइड. बहुत ही, यू नो, अच्छा वर्ड है. इफ यू डोंट नो इट देन काइंडली पेन इट डाउन, लिख लीजिए इसको. पेट्रीफाइड आपको चूज करना है इसका एंटोनियम. ऑप्शन ए है फियरलेस, ऑप्शन बी हार्मफुल, ऑप्शन सी साइलेंट या ऑप्शन डी हैप्पी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. All right, so time over. Choose the antonym of petrified. Petrified means होता है basically, you know, frightened, scared, बहुत ज़्यादा डरा हुआ. Okay, extremely fearful. Fearful भी आप इसको कह सकते हैं. तो अब तो आंसर क्लियर ही हो गया. fearful है तो fearless will be the opposite. Okay, petrified means frightened, scared. Okay, and the opposite will be जिसको, you know, जिसको डर नहीं लगता, भय मुक्त कह सकते हैं, fearless. Okay, so the opposite will be fearless. आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, और आप अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, राइट? सो दैट वी कैन सी कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है. एंड टुडेज़ वीडियो वॉज समथिंग, यू नो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी.
और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा बिकॉज यू वर डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग हियर। पूरी जो वीडियो थी उसमें आप ही ने बेसिकली सब कुछ किया बिकॉज यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। शेयर योर स्कोर एंड यू नो वोकैब अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम्स में भी पहले वोकैब के क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो वी विल कीप ऑन डूइंग द रिवीजन ऑफ वोकैबुलरी थ्रू these type of captivating quizzes, all right? So thank you so much for